Good morning, my dear students. I welcome you once again in the class of Accounts Standard 11, chapter number 7 we are continuing with, and today I am going to explain you question number 7. Now, this is the question with two columns, and the columns are discount and bank. Before we start with question number 7, let us go through the specimen of this. Now, this is the format of bank and discount columnar. Cash book, title remains the same, cash book of so and so, debit side and credit side, date, particulars, ledger folio number, discount allowed as it was in cash and discount के column में जैसे था, bank, and the right hand side, date, payments, voucher number, ledger folio, whatever discount you have received. Along with that, there is bank column. Fine. Okay, now question number 7 on your page number 186. From the following transactions, prepare bank and discount columnar cash book of Akhilesh 2015 July 1st. Opening bank overdraft 13,500. It is your bank OD. So I have explained you in the previous sum as well. बैंक OD का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस brought forward and balance is 13,500. Okay, so this is your opening balance. It is the balance of bank OD. So we have written in the column of bank and on credit side. Now moving on to date 2. Goods of 5,000 sold to Premal, against which he issued a check of 4950 in full settlement of account, which is immediately deposited in the bank. Fine. Now what it is said, हमने 5,000 के गुड्स प्रेमल को बेचे और प्रेमल ने सामने हमें 4950 का चेक इशू करके दिया है. That means we are allowing him 50% of 50 rupees of discount. Total he was supposed to pay 5,000, but he is paying to us 4950. Okay, so हमने क्या किया था? सेल्स किया था. यहाँ पर डेट 2 on receipt side to सेल्स अकाउंट. सेल्स से क्या होता है? हमारी रेसिट्स जनरेट होती हैं. दैट मीन्स हमें पैसा मिलता है. हाउ मच ही हैज पेड अस थ्रू चेक? 4950. व्हाट इज द डिस्काउंट रेट वी हैव अलाउड? ₹50. उसने नहीं पे किया है. दैट इज व्हाट वी हैव अलाउड हिम डिस्काउंट. नाउ डेट 8. गुड्स ऑफ 6,000 purchased and a check is issued for the necessary amount. हम क्या कर रहे हैं? 6,000 का परचेजिंग कर रहे हैं चेक के थ्रू. सो परचेज किया है, हम पेमेंट्स करेंगे. डेट 8 बाय परचेज अकाउंट. हाउ मच? 6,000. ओके, चेक के थ्रू हमें पेमेंट किया है, इसके लिए बैंक अकाउंट. नाउ डेट 10. Check of 5,000 is received from Geetaben in full settlement of 5060. Geetaben से हमें चेक मिला है. So it will appear on the receipt side, on the debit side. कितने का चेक मिला है? राउंड फिगर है 5,000. मिलना कितने का चाहिए था? 5060 का. So 60 rupees is again discount allowed. Date is 10. On receipt side, गीताबेन से हमें चेक मिला है टू गीताबेन अकाउंट. कितना? डिस्काउंट अलाउड में 60 एंड हमें 5,000 का बैंक में चेक मिला है. डियर स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन टू डेट 15. चेक ऑफ 7,000 इशूड टू आराधना इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट 7015. नाउ हमने कितने का चेक बनाया है? 7,000 का चेक बनाया है. किसको दिया है हमने? आराधना को. कितना देना चाहिए था? हमारा डेप्ट यानी हमारा कर्जा कितना था? 7015. 15 रुपीज हम कम पे कर रहे हैं. दिस इज व्हाट डिस्काउंट वी आर रिसीविंग. सो
डेट इज 15, हम आराधना को दे रहे हैं, सो बाय आराधना अकाउंट 15 रुपीज हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। इसके लिए हम डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और चेक हमें कितने का मिला है, 7000 का, सो 7000। ओके, नाउ ऑन डेट 20th, goods of 16,000 sold to Kajol, for which she issued a check of necessary amount which is deposited in the bank। 20th ट्रांजेक्शन में हमने काजोल को गुड्स बेचे हैं और उसने हमें चेक दिया है। सो गुड्स बेचते हैं, पैसा आता है, डेट 20 टू सेल्स अकाउंट, कैश के कॉलम में, सॉरी बैंक के कॉलम में 16,000। ओके, नाउ मूविंग बैक अगेन टू द क्वेश्चन ऑन डेट 25, कैश ऑफ 2000 डिपॉजिटेड इन दी बैंक। क्या बताया है, हमने 2000 का डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर, कैश गोज आउट एंड बैंक इज दी रिसीवर। कैश गोज आउट। नाउ दिस इज योर जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक इज योर पर्सनल अकाउंट, अगेन cash is your real type of account. So credit goes out and bank is the receiver as per the rules of personal and real account. Now this time in the sum you are not available with cash column. Is there? No, because it is clearly mentioned in the question that you are supposed to prepare bank and discount columnar. इसके लिए discount है, bank है. Here also discount received and बैंक इज देयर, नो कैश इज देयर। तो अब हमें इस जर्नल एंट्री का क्या करना होगा और कैसे करना होगा। नाउ बैंक इज द रिसीवर, बैंक को हम क्या कर रहे हैं, 2000 रुपीज से डेबिट कर रहे हैं। सो ऑन डेबिट साइड बैंक के कॉलम में 2000 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ओके, एंड डेट कौन सा बताया है आपको, डेट इज 25। फाइन, डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा और यहां पे आप क्या लिखेंगे, बैंक का कॉलम में अमाउंट लिखा है तो यहां पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, एंड हियर यू विल पुट कॉन्ट्रा। फाइन, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग बोथ। नाउ आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बैंक डेबिट हो रही है, कैश गोज आउट, बैंक इज द रिसीवर ऑफ 2000 रुपीज, एंड हियर डिस्काउंट एंड बैंक कॉलमनर cash book is there, no cash column is there, so only one effect will be there, बैंक को हमें क्या करना है, 2000 से डेबिट करना है। तो हमने क्या किया, डेबिट बैंक के कॉलम में 2000 और लिखा क्या, टू कैश। इन लेजर फोलियो हमने क्या किया है, कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल डाला है। नेक्स्ट, डेट लास्ट, चेक इशूड बाय काजोल इज डिसऑनर्ड। जो हमको मिला था चेक वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। ओके, कौन सी डेट को हमें मिला था, 20th डेट को हमें मिला था, हमने सेल्स किया था काजोल को, तो हमने क्या दिखाया था, ये हमारा रिसिट है। अभी हम उसको रिवर्स करेंगे जस्ट बिकॉज वो चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर हो गया है। ऑन डेट 29 यहां पे क्या लिखेंगे, बाय काजोल अकाउंट, बैंक के कॉलम में 16,000। फाइन, यहां पे 16,000 और यहां पे काजोल, इसके लिए क्योंकि अभी भी हम काजोल से पैसा मांग रहे हैं। ओके, नाउ ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सम, आपको सबको पता ही है क्या करना है हमें। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सम हम क्या करेंगे, टोटलिंग्स करेंगे। ओके, फाइन, क्या करना होगा, डिस्काउंट का इंडिविजुअल टोटल होता है, कैरी फॉरवर्ड यहां पर नहीं होगा। 50 प्लस 60 110 आएगा, एंड हियर 15। इनका बैलेंस नहीं निकलता है, ये खुद ही आपस में बैलेंस है, इनके अलग से सेपरेट अकाउंट्स होते हैं। दिस इज टोटली डिफरेंट। डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें देखना है कि कौन से साइड ज्यादा आपको लग रहा है। सो ऑन दिस साइड यू कैन सी, ऑन क्रेडिट साइड,
कि आपका बैंक का अमाउंट ज्यादा है, हम पहले बैंक के कॉलम को टोटल करेंगे, तो टोटल विल टर्न अप टू 42,500। यही 42,500 को आपको क्या करना है, डेबिट साइड लेकर आना है, 42,500। ओके, एंड अब क्या करना होगा, ये सारे 4950, 5000, 1600 एंड 2000 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सो जो बैलेंस आपका आएगा, दैट बैलेंस विल बी 14,550 एंड विच मंथ वी आर रनिंग, जुलाई। जुलाई में कितना होता है लास्ट, 31। टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ओके फाइन। सो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जुलाई के लिए, तो ओपनिंग क्या होगा, अगस्त 2015, अगस्त 1st, क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना आएगा ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस, सेम जो यहां पे था, 14,550। वॉट दिस बैलेंस इंडिकेट्स, बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड अगर आप चेक कर रहे हैं तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो दिस इज नथिंग बट योर बैंक ओडी। ओके, आपकी सम की शुरुआत भी बैंक ओडी से हुई थी और एंड भी आपका क्या हुआ है, बैंक ओडी से। फाइन। यहां पे जो आपका बैलेंस है वो हम नेक्स्ट मंथ यहां पर लेकर आ रहे हैं ऑन द क्रेडिट साइड। 1 अगस्त को ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये क्रेडिट साइड है, इसके लिए बैंक का बैलेंस नहीं है, ये बैंक का ओवरड्राफ्ट है। इज दिस क्लियर टू यू पीपल? And now your today's homework is question number 7, which I have explained you right now, plus illustration 5 is of same type. Please do both these sums. Thank you, students.